Good morning, dear students. Hope you all are staying safe at home and enjoying your online classes. As we have discussed about laws of chemical combination and Dalton's atomic theory, now the very important topic in basic concepts of chemistry is mole concept. Actually, it was introduced by Avogadro, and as you all know that atoms and molecules are very small in size, and even in a single drop of water or even a very small amount of substance may have millions and millions of atoms or molecules. So to handle such a large number, a unit, or you can say a unit of similar magnitude, is to be there. So this unit was introduced as 1 mole of any substance. So we'll discuss this concept in detail. So before going in the details, let us discuss atomic mass. As you all know that mass of one atom is called atomic mass, but actually this is not the actual mass of that atom that we are using for calculations and all. It is actually the relative atomic mass of an element. और relative किस sense में है ये? Because nowadays so it is very easy because of advancement in technology to calculate or to find mass of one atom precisely, but during 1961 around, when these kind of technologies were not there, so it was suggested by scientists that there should be one reference atom और उसके कंपैरिजन में एटम्स का मास फाइंड किया जाता है. जैसे आप अभी मार्केट में कोई वेजिटेबल लेने जाते हो, यू आस्क दैट वेजिटेबल सेलर टू गिव 2-3 kg ऑफ एनी वेजिटेबल. व्हाट ही डज, वो 1-2-3 kg के जो भी उसके पास वेट होते हैं, आयरन वेट, ही यूजेस दैट और उसके साथ वो कंपेयर करता है उस वेजिटेबल को और ही मेयर द थिंग्स एंड ही delivers the thing to you. Exactly same happens in chemistry because atoms cannot be measured as such. तो एक reference atom बनाया उसके लिए, and that reference atom, standard atom, is selected carbon 12 isotope. And this is again interesting why carbon was selected. One thing is carbon is quite abundant in nature. Secondly, it is not so much reactive and बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव भी नहीं है, मॉडरेटली रिएक्टिव एटम है, तो इट रिएक्ट्स स्लोली एंड दैट इज़ वाई इट कैन बी यूज्ड इजीली. एंड थर्ड थिंग इज दैट कार्बन मेनली एग्जिस्ट इन इट्स 12 आइसोटोप. इसके और भी जो 2 आइसोटोप्स हैं वो बहुत कम अमाउंट में नेचर में अवेलेबल है. तो दैट इज़ वाई बिकॉज ऑफ दीज 3 reasons. And next important thing, while comparing the masses of other elements, most of the masses were in whole number, so it was easier to compare because इससे पहले हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को भी रेफरेंस सेलेक्ट किया गया था, बट बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस they were rejected, and now we are using carbon 12 isotope as reference atom to compare the masses of elements. So you can say atomic mass of any element can be calculated, mass of an atom divided by 1/12th of the mass of one कार्बन 12 आइसोटोप. तो इस कार्बन एटम आइसोटोप के मास से डिवाइड करके अगर आप एक एटम के मास को, जो अगर आपको एग्जैक्टली ग्राम्स में मास पता है, यू कैन फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट. एंड मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज assigned by the scientist as exactly 12 atomic mass unit. मतलब 12 AMU के इक्वल होता है एक कार्बन के 12th आइसोटोप का मास, और बाकी के एलिमेंट्स के मासेस को हम इनसे कंपेयर करके फाइंड कर सकते हैं. एंड दिस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो 12 AMU यूनिट है, इसको अगर हम 12 से डिवाइड कर दें, देन वी गेट 1 एटॉमिक मास यूनिट. तो 1 AMU कैन बी डिफाइंड एज mass exactly equal to 1/12th of the mass of one atom of carbon. And 1 AMU की जो calculations है ये scientist ने की है, and it is equal to the 1.66056 multiplied by 10 raised to the power minus 24 gram. अब इसको किस तरह से यूज़ करते हैं this relative atomic mass find करने में? Example you can see, mass of one atom of hydrogen in grams is 1.6736 10 raised to the power minus 24 gram. It is determined by mass spectrometry,
एंड अगर हमें AMU में इसका मास फाइंड करना है, व्हाट वी नीड टू डू, वी अप्लाई द अबव फॉर्मूला, मास ऑफ एटम इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम, दैट इज 1 AMU. 1 AMU से इसको डिवाइड कर दीजिए आप, यू विल गेट आंसर 1.0078 U, अप्रोक्सीमेटली 1 जो हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन का मास. तो हाइड्रोजन का मास आप जो यूज़ कर रहे हैं 1 U, दैट इज इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास, जो कार्बन के मास को कार्बन के 12 आइसोटॉप के एक एटम के मास से कंपेयर करके निकाला हुआ है. तो इन दिस वे the masses which we are using nowadays, they all are relative atomic masses. Next is molecular mass and formula mass. अब atomic masses तो they are calculated in relative to carbon reference. Molecular masses can be calculated by using these atomic masses and calculating the sum of atomic masses of all the elements present in a molecule. किसी भी molecule में जितने atoms हैं उन सब के atoms के atomic masses को अगर हम add कर दें, we will get the molecular mass of that particular molecule. For example, you can see molecular mass of glucose can be calculated like this. Next, formula unit mass. अब फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस क्या है? मॉलिक्यूलर मास टर्म इज बेसिकली यूज फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स, जहां मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में वो कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, वेयर एज फॉर्मूला मास और फॉर्मूला यूनिट मास, दिस टर्म इज यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड्स, बिकॉज इन आयनिक कंपाउंड्स actually molecules do not exist and one formula unit of every ionic compound contains a fixed number of ions. तो उनके जो एक फॉर्मूला के अंदर जितने आयंस हैं उनके मासेस को ऐड करके हम फॉर्मूला मास फाइंड कर सकते हैं. तो फॉर्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास मेथड्स आर सेम, जस्ट द टर्म्स आर डिफरेंट फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपाउंड्स. नेक्स्ट इज मेन थिंग that we are going to discuss, mole concept. तो मोल क्या है? पार्टिकल्स की टर्म में कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं? तो मोल, 1 mole of any substance is that amount which contains this much particles, 6.022 10 raised to the power 23. जैसे एक डजन की आप बात करते हैं मैथ्स में, 1 dozen means 12 pieces of any substance. तो केमिस्ट्री के अंदर ऐसे ही एक यूनिट फिक्स कर दी है कि अगर किसी सब्सटेंस के आप 1 मोल की बात कर रहे हो तो वो किसी भी तरह का सब्सटेंस है, आप एटम्स की बात कर रहे हैं, पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, आयंस की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, न्यूट्रॉन्स, एनी टाइप ऑफ पार्टिकल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 1 मोल, दैट विल बी इक्वल टू this number 6.022 10 raised to the power 23. And according to SI definition, it can be defined as, it is the amount of a substance that contains as many as particles as there are atoms in exactly 12 gram or 0.012 kilogram of C12 isotope. Because कार्बन को हमने रेफरेंस सेलेक्ट किया हुआ है एज अ स्टैंडर्ड एटम फॉर कैलकुलेशंस ऑफ मासेस, तो उसी कार्बन 12 के आइसोटोप के एटम के अंदर, मतलब इस 12 ग्राम या 0.012 किलोग्राम के अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो पार्टिकल का जो नंबर होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज 1 मोल. तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन that is calculated by spectrometry, mass spectrometry, it is 1.992648 multiplied by 10 raised to the power minus 23 gram. अब mass of 1 mole of carbon, 1 mole जो कार्बन का है, मतलब 1 mole को अगर हम मास की टर्म में डिफाइन करते तो दिस इज इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास, तो इट्स 12 ग्राम पर मोल. अब नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से ये नंबर फाइंड किया था साइंटिस्ट ने. तो 12 ग्राम पर मोल जो 1 मोल का मास है कार्बन के, उसको डिवाइड किया एक एटम के मास से. तो आप 1 मोल मास को 1 एटम के मास से जब डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट 12 ग्राम ऑफ कार्बन. तो दिस वाज 6.022 10 raised to the power 23 एटम्स. ठीक है, तो दिस नंबर वॉज असाइंड एज अ फिक्स्ड नंबर विच इज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस. तो दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवोगैड्रोज नंबर बिकॉज दिस होल कॉन्सेप्ट वॉज एक्सप्लेन्ड बाय. नेक्स्ट, मोल इन टर्म्स ऑफ मास. अभी हमने डिस्कस किया कि 1 मोल जो अमाउंट होता है किसी भी सब्सटेंस का, उसमें पार्टिकल्स
एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। अब वो जो अमाउंट होगा उसका मास कितना होगा, वो हमेशा उस सब्सटेंस के, अगर वो सब्सटेंस एटम्स एटॉमिक है, लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, तो 1 mole ऑफ एनी सब्सटेंस लाइक 1 mole ऑफ गोल्ड, 1 mole ऑफ सिल्वर विल कंटेन द मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास बट इन ग्राम। जैसे कॉपर की हम बात करें तो कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 U होता है। U इज द यूनिफाइड मास, बट अगर हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं देन इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, एंड ग्राम एटॉमिक मास फॉर कॉपर इज 63.5। तो 63.5 ग्राम में कॉपर का 1 mole होगा और 1 mole में पार्टिकल्स उसके 6.02 to 10⁻23 होंगे। तो ये रिलेशन है मोल का पार्टिकल्स के साथ और मास के साथ। और अगर स्पीशीज मॉलिक्यूलर है देन इट वुड बी मॉलिक्यूलर मास। अब मास ऑफ 1 mole ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। ये भी मोलर मास भी कह सकते हो आप, अदरवाइज ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, बोथ ऑफ द टर्म्स कैन बी यूज्ड। Next, 1 mole of atoms if we are talking about, then there are Avogadro numbers of atoms and their mass would be equal to atomic mass expressed in gram. So for example, 1 mole of hydrogen atom contains 1 gram and 1 gram हाइड्रोजन में जो पार्टिकल्स होंगे, एटम्स होंगे, वो 6.02 to 10⁻23 होंगे। और इस अमाउंट को, जो ग्राम एटॉमिक मास वाला अमाउंट है या 1 mole है, उसको 1 ग्राम एटम भी कंसिडर किया जाता है। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड लाइक दिस, बट जनरली वी आर यूजिंग द टर्म मोल। And 1 mole of molecules will have this much Avogadro molecules and that will have mass equal to gram molecular mass. Means molecular mass of any molecule when expressed in gram, then it will have particles this much Avogadro's number. For example, अगर हम 1 mole हाइड्रोजन एटम की बात करें तो मास 1 ग्राम होगा। अगर हम 1 mole हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उसका मास 2 ग्राम होगा, because hydrogen molecule consists of 2 atoms of hydrogen. Next, mole in terms of volume. अब हमने पार्टिकल्स और मास को तो कनेक्ट कर दिया। अब गैसेस के लिए, बिकॉज एज वी हैव डिस्कस्ड इन दोज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि गैसेस के वॉल्यूम में भी एक रिलेशन होता है कि सारी गैसेस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे जब होती हैं तो उनमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो दिस इज द reason that they are also related to the mole, because if they have same number of particles, same number of molecules at similar temperature and pressure, then obviously they will be having same number of उनका जो फिक्स वॉल्यूम होगा उसमें उनका जो अमाउंट है वो भी 1 mole फिक्स हो जाएगा। तो वी कैन से दैट 1 mole ऑफ एनी गैस एट STP, STP होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और केमिस्ट्री में इसकी जो वैल्यूज फिक्स हुई हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 273 केल्विन, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, एंड प्रेशर इज टेकन एज 1 एटमॉस्फेयर। इस टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी भी गैस का 1 mole जो होता है उसका वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर होता है, एंड दिस यू नीड टू लर्न। जैसे मासेस फिक्स है कि हर एक का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास जब ग्राम में होगा तो वो उसके 1 mole के इक्वल होगा। गैसेस के लिए मासेस का तो अप्लाई होता ही है रूल, साथ साथ उनके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अप्लाई होती है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 1 mole ऑफ अ गैस, एट दैट टाइम इट विल ऑलवेज हैव 22.4 लीटर वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसी टेम्परेचर और प्रेशर की बात हम करें तभी, अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कर दिया वॉल्यूम विल चेंज ऑब्वियसली। एंड वॉल्यूम ऑफ 1 mole ऑफ अ सब्सटेंस, gaseous substance, is called its molar volume. Suppose example you can see 1 mole of hydrogen gas at STP 22.4 liter, 1 mole of CO2 gas at STP 22.4 liter, 1 mole of helium, xenon, neon, argon, any gas, they will also have same volume 22.4 liter if they are at STP. So 1 mole of every gas at standard temperature and pressure have a fixed volume that is 22.4 liter. Now you can see through this diagram how 1 mole is related to these 3 different properties of atoms or molecules. Mole is related to mass, mole is related to volume of gases,
and mole is related to the number of particles. So 1 mole will always have that Avogadro number of particles fix होगा. अगर वो atoms हैं तो उसका mass atomic mass ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा. अगर मॉलिक्यूल है तो उसका मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा. और अगर वो गैसियस सब्सटेंसेस है तो उसके 1 मोल में हमेशा 22.4 लीटर वॉल्यूम रहेगा. नेक्स्ट इज we can discuss certain formula which we have to use during calculations. First one, if you need to relate mass with mole, you can apply this formula. Mole is equal to given mass divided by molar mass. Molar mass का मतलब वही ग्राम एटॉमिक मास अगर एटम्स है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर वो टर्म मॉलिक्यूल्स के लिए यूज कर रहे हैं. सेकेंड फॉर्मूला, given number of particles divided by Avogadro's number. Avogadro's number is, you know that 6.022 10 raised to the power 23. So if number of particles are given and mole is to be calculated, you can apply this formula. And third one, for gaseous substances, you can use this formula also. Given volume of a gas divided by its molar volume. Molar volume, you know, is fixed 22.4 liter. So putting that value, you can use this relationship, but it's important to consider the temperature. Either STP should be written or NTP, normal temperature. दोनों में से जो भी term लिखा है, the formula can be used. Now one example. Calculate number of moles of carbon and hydrogen atoms and number of molecules of ethane in 3 mole of ethane gas. So you need to find first, you are given with 3 moles of ethane gas and you need to find number of moles of carbon and hydrogen atom. Now you think the formula of ethane. Ethane is C2H6. तो एक मॉलिक्यूल इथेन में कार्बन के जो एटम है 2 है और हाइड्रोजन एटम 6 है. तो 1 मोल, एक फॉर्मूला किसी भी सब्सटेंस का वो हमेशा उसके 1 मोल को डिपिक्ट करता है. ऑलवेज रिमेंबर दिस. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी सब्सटेंस और एटॉमिक सिंबल ऑफ एवरी सब्सटेंस डिपिक्ट्स represents its 1 mole amount. Always remember this thing. So 1 mole of ethane has 2 atoms of 2 moles of carbon atom and 6 moles of hydrogen atom. तो question में given है आपको 3 mole. तो 3 moles of ethane will have 3 multiplied by 2, 6 mole of carbon atom and 6 multiplied by 3, 18 moles of hydrogen atom. And now second thing we need to calculate is number of molecules of ethane. Number of molecules of ethane निकालना है, मतलब number of particles निकालना है. तो particles और mole का relation आप direct भी लगा सकते हो by using formula. Otherwise simply by unitary method you can say when 1 mole of ethane has कितने particle होंगे 1 mole में. Obviously Avogadro's number molecules. तो 3 moles में 3 multiplied by the Avogadro number of particles. So in this way you can find the number of molecules. और अगर आपने यहाँ formula लगाना है, you can use that number of particles, given particles and divided by Avogadro number of particles equals to mole. तो यहाँ आपको mole given है, mole की value put कीजिए, Avogadro number put करिए and you can find the given particles number. Next, one more example. You need to calculate number of moles in the following masses. 1.46 metric ton of aluminium. 1 metric ton is equal to 10 raised to the power 3 kilogram. And second is 7.9 milligram of calcium. तो 1.6 metric tons of aluminium को पहले convert करना है हमने ग्राम में. And remember this thing because mole concept is only applied in grams. तो आपको जो भी masses given है उनको आपने ग्राम में convert करना है. तो convert it into gram. 10 raised to the power 3 किलोग्राम होते हैं 1 मीट्रिक टन में और फर्दर फिर ग्राम में करना है मल्टीप्लाइड विद 10 raised to the power 3 मोर. तो टोटल 10 raised to the power 6 से मल्टीप्लाई करके आपके पास ग्राम में मास आएगा एल्यूमिनियम का. नाउ एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम ग्राम, एटॉमिक मास 27 ग्राम. तो मोल्स निकालने के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं. मास ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज द गिवन मास ओवर एटॉमिक मास. तो यू कैन फाइंड द आंसर. सेकेंड है 7.9 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम. तो मिलीग्राम को अगेन आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 10 raised to the power -3. एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम 40. आप सिंपल 40 से कर सकते हैं, डजेंट मैटर कि 40.1 ही यूज़ करना है, डेसिमल्स में यूज़ करने की ज़रूरत वहाँ है जहाँ एग्जैक्टली 0.5 है. जैसे कॉपर 63.5 है या क्लोरीन 35.5 है. तो इन दिस वे यू कैन फाइंड. Next, calculate the number of atoms in each of the following. 52 moles of argon.
आर्गन के 52 मोल में नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। अब आर्गन एटॉमिक स्पीशीज है तो कोई टेंशन नहीं है आपको, जितने उसके एक सिंबल में आपको नजर आ रहे हैं एक ही एटम होता है एक सिंबल में, तो मोल्स के नंबर भी सेम रहेंगे। तो 52 मोल्स ऑफ आर्गन, 1 मोल ऑफ आर्गन में कितने पार्टिकल्स होते हैं? ऑब्वियसली एवोगैड्रो नंबर, तो 52 मोल में होंगे 52 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। सेकेंड 52U। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी कभी मासेस U में गिवन है, यूनिफाइड मास, तो यूनिफाइड मास जब हम यूज़ करते हैं टर्म, तो हम मोल कंसेप्ट की बात नहीं करते, रादर 52U इज रिप्रेजेंटिंग द मास ऑफ एटम्स ओनली, नॉट द मोल। ठीक है, तो एक हीलियम एटम का जो मास होता है, सिंगल हीलियम एटम, दैट इज 4U। तो 4U हीलियम में एक एटम होता है, 52U ऑफ हीलियम वुड बी 1/4, 52 डिवाइडेड बाय 4। तो सिंपली यूनिटरी मेथड कैन बी अप्लाइड टू फाइंड द आंसर। बस इसमें चीज़ आपने यही ध्यान रखनी है कि U अगर गिवन है तो आपको मोल कंसेप्ट नहीं लगाना, U मीन्स एक एटम का मास होता है। तो 4U ऑफ हीलियम इज 1 एटम, तो 50U ऑफ हीलियम में कितने एटम्स होंगे? 13, 52 डिवाइडेड बाय 4। थर्ड 52 ग्राम ऑफ हीलियम। अब 52 ग्राम ऑफ हीलियम मतलब ग्राम में जब मास आ गया तब आपने मोल कंसेप्ट अप्लाई करनी है। तो यहाँ क्या होगा? 4 ग्राम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू कितने पार्टिकल्स? ऑब्वियसली एवोगैड्रो नंबर होंगे। अब एक एटम नहीं है ये, एक मोल जो एटम होता है वो उसके ग्राम एटॉमिक मास की इक्वल होता है। तो ऑब्वियसली 1 मोल में पार्टिकल्स एवोगैड्रो नंबर, 52 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करिए 52 से और डिवाइडेड बाय 4, यू विल गेट द आंसर 7.83 10⁻24 grams atoms. So next one more example, if you need to find mass of one atom, किसी भी एलिमेंट का, सपोज यहाँ हमने C12 एटम का मास निकालना है, तो अब ग्राम में मास निकालना है आपने 1 एटम का। अब हम ग्राम में जो एटॉमिक मास को कंसीडर करते हैं, जैसे आप एक कार्बन C कार्बन का जो एटॉमिक मास है ग्राम में वो कितना है? ऑब्वियसली 12 ग्राम, बट वो 12 ग्राम उसके एक एटम का मास नहीं है। दिस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, दैट इज 6.022 10⁻23 एटम्स का जो मास है वो 12 ग्राम है। तो 1 एटम का मास कितना होगा? 12 over 6.022 10⁻23 multiply by 1. Simply apply this unitary method and you can find this answer. Next one more. If volume is given and you need to find number of molecules and number of atoms. यहाँ पर हमें ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम दिया है STP पे, दैट इज 11.2 लीटर। तो अब आपको पता है एक मोल किसी भी गैस का, कोई भी गैस, नाम से कोई मतलब नहीं है आपको गैस के, एनी गैस एट NTP और STP हैज़ अ वॉल्यूम 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर उसका 1 मोल रिप्रेजेंट होता है, 11.2 लीटर पे ऑब्वियसली उसका हाफ मोल रिप्रेजेंट होगा। तो आप सिंपली अंडरस्टैंडिंग से आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज जो फॉर्मूला मैंने बताया आपको, मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ओवर दैट इज molar volume. तो 11.2 divided by 22.4 you will get 0.5 mole is the answer for moles only. But question में आपको पूछा है number of molecules and atoms of oxygen. तो 1 mole में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? ऑब्वियसली 6.022 10⁻23। तो हाफ मोल में कितने हो जाएंगे? एग्जैक्टली हाफ, 3.01 10⁻23। और सिंपली 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में एटम्स कितने होते हैं ऑक्सीजन के? अब आपको पता है एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं O2 से, तो O2 का मतलब 2 ऑक्सीजन एटम। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस विल हैव 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑब्वियसली। तो अब यहाँ आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स के आए थे उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ एटम्स। तो इन दिस वे यू कैन डू कैलकुलेशंस इंक्लूडिंग मोल्स। आई हैव गिवन वन असाइनमेंट, solve that, and if you have any doubt you can call me.